Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So today we are going to study the method to find the roots of any quadratic equation. Now to find the roots of any quadratic equation, first of all we know what is quadratic equation. Quadratic equation is nothing but it is a general equation of a quadratic equation, ax square plus bx plus c, where a, b, c are the coefficients, that is a constant, and x is a variable. तो यहाँ पर as we know the degree of this equation is always 2, and I have already told you when a degree is 2 that means it has how many zeros? 2 zeros, and the symbol for the zeros of a quadratic equation is alpha and beta. Now what are zeros? So zeros are those values of the variable for which the equation becomes 0. Means what? If we are going to put alpha in place of x in this equation, the equation will going to become 0. Or if we are going to put beta in place of this x, then we have already seen if you are going to put the value of alpha, the whole equation becomes 0. If you are going to put the value of x as beta, the whole equation will become 0. At a time, either put alpha or put beta in both the x's. Okay? At that time, the equation becomes 0. That is called the zeroth equation. Now, how to find the zeros of the equation? Then, how to find the zeros? There are three methods by which you can find the zeros of the equation. First is factorization method. पहली क्या है? Factorization method. इसका एक और नाम होता है splitting the middle term method. Second method is nothing but completing the square method. And the third method, which each and every person knows, is the using quadratic formula or Sridharacharya This you already know, splitting the middle term. Suppose we have an equation ax square plus bx plus c. Middle term is bx. We have to split this bx into two parts such that addition will going to give you bx itself, but their products will going to give you the product of a and c. Hope you understand. इससे related topic in this particular video I have already made. You can see there in my playlist. इसके बाद जो सेकंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट आल्सो यू ऑलरेडी नो. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x will be equals to minus of b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a, where a, b, c are what? Are the coefficient of the x square, x and the constant. ये फॉर्मूला लगा दो. तीसरा the most important thing in this video which I am going to tell you, that's completing the square method. अभी completing the square method होता क्या है? तो कंप्लीटिंग का स्क्वायर मेथड में आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए. वो क्या है? कंप्लीटिंग का स्क्वायर. आपके पास एक फॉर्मूला पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर. दैट इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ a प्लस द प्लस 2 into a into b प्लस द स्क्वायर ऑफ b. And the formula a minus b का whole square is a square minus 2ab plus b square. अगर आपको ये दो फॉर्मूले आते हैं, then you know the basic of completing the square, that how to solve it. Whatever is the equation given to you, कोई भी equation जो आपको दी है उसमें अगर आपको if you want to find the zeros of the quadratic equation using this particular trick, तो आपको basically उस equation में जो भी आपके पास equation होगी ax square plus bx plus c, इन दोनों का यूज करके दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx को कन्वर्ट करना होगा ईदर इन दिस इक्वेशन और इन दिस इक्वेशन. इट विल डिपेंड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ x. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इज अ नेगेटिव साइन तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव साइन तो a प्लस b का स्क्वायर लगेगा. c का यूज नहीं होगा इसको सॉल्व करते समय.
सी का फाइनली जब आउटपुट निकलेगा वहां ही जाएगा। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं व्हाट इट इज एंड हाउ वी विल टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे थे आपके पास। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन टू यू x square plus 6x equals to 16. I'm going to rewrite this equation as x square plus 6x minus 16 is equals to 0. What I've told you, you are going to compare or you are going to use these two terms. पहला x square, दूसरा 6x square. आपको पता है the formula of a plus b का whole square is nothing a square plus 2ab plus b square. अब जस्ट थिंक, ये दो स्टार्टिंग के टर्म्स है और ये दो स्टार्टिंग के टर्म्स है सेम है, तो मुझे पता क्या करना होगा, बी स्क्वायर। अगर मुझे बी पता चल जाए तो आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू दिस वन। होप दिस इज क्लियर कैसे करना है। नाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर दीस टू टर्म विद दीस टू टर्म्स। इन प्लेस ऑफ a व्हाट इज देयर, x a square x square. In place of 2ab, since it's plus sign, I'm using the plus formula. 2ab की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 6x. अभी मैंने देखा a की वैल्यू क्या है, x. I'm going to put x in place of a. 2xb will be equals to 6x. यहां से मेरे पास b कितना आ गया, 6x upon 2x नीचे चला गया, x get cancel. 2 1s 2 3s, तो b कितना आ गया मेरे पास 3. Is that clear what I have done? Please listen once again. I'm going to use this formula. Why this formula? Because in my equation the coefficient of x, that is the coefficient of x, जो मैं b बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू है प्लस में, I'm taking plus वाला फॉर्मूला यूज किया। जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर के बदले the first term which we have in a quadratic equation that plays the role of x square. तो x स्क्वायर क्या है, a. 2ab की वैल्यू 6x है। यहां मैंने a की वैल्यू एक्सपोर्ट की, b कितना आ गया 6x upon 2x, 2 3s are 6, x get cancel, b की वैल्यू आ गई 3. Now in mathematics we already know we can add 0 in any number. किसी भी नंबर में 0 ऐड कर सकता हूं, तो 0 ऐड करने का मतलब है I am going to rewrite this equation as 6x. 3 है, मुझे क्या चाहिए, b का स्क्वायर, b की वैल्यू 3 आई है, b का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस, या मैं ऐसा लिख दूं प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बस जो मेरे पास बाद में लिखा था वो लिख ही दूं। मैंने क्या किया, ये मेरे पास इक्वेशन थी, मैंने b की वैल्यू ऐड कर दी स्क्वायर और b की वैल्यू माइनस कर दी। 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर गिव्स यू 0. यू डोंट हैव टू डू इट, यू डोंट हैव टू सेपरेट इट। तो आप क्या करोगे, इन तीन का यूज करके क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर गिव्स यू व्हाट, a प्लस b का होल स्क्वायर minus 9 minus 16 is equals to 0. X plus 3 का whole square minus this will going to give you 25 equals to 0. X plus 3 का whole square equals to plus 25. X plus 3 will be equals to root over 25. आगे साइन होता है प्लस माइनस। Why प्लस माइनस है? मुझे पता है 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो हाउ कुड यू राइट दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज ओनली 5? स्क्वायर ऑफ 25 कैन बी प्लस 5, कैन आल्सो बी माइनस 5। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस दोनों साइन लिए। सो माय आंसर, फाइनल आंसर विल बी व्हाट, x plus 3 will be equals to plus minus 5. ये आएगा। अब मैंने क्या बोला था, in a quadratic equation how many zeros will a quadratic equation will have? 2. तो एक बार आप लोगे either x plus 3 equals to plus 5 और x plus 3 will be equals to minus 5. यहाँ पे आता है x equals to 5 minus 3, x equals to 2, और यहाँ पे आता है x equals to minus 5 minus 3, x equals to minus of 8. ये जो दो वैल्यूज आई हैं x की, इसी ये हम अल्फा दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू सॉल्व एनी ऑफ द quadratic equation using completing the square method. Hope this is understood. Hope this is easy and you understood. अगर डाउट है पूछ लो। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन, जो भी हमारे पास इक्वेशन लिखी है, फर्स्ट वी विल गोइंग टू कन्वर्ट दैट इनटू द रियल फॉर्म। रियल फॉर्म मतलब क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी। अब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स को हम कंपेयर करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। इसको जब ओपन करते हैं तो हमें पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे ए स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, 2ab की जगह पे 6x है। मुझे क्या चाहिए, बी, तो 2ab इज इक्वल टू 6x। ए की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ x, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6x अपॉन 2x गिव्स यू 3। 3 का स्क्वायर प्लस किया, 3 का स्क्वायर माइनस किया, दैट इज आई एम एडिंग 0। तो 3 का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूले में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया a प्लस b दैट इज x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 16 माइनस 9 माइनस 16 gives you minus 25। If you are going to change its side, it will going to give you 25. Square root of the 25 is plus minus 5. So either plus 5 or minus 5. दो आपके पास मिलेगा। This is completing the square method. We are going to solve one more question using this method. एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। First I will write the question. The second question will be 3x square minus 5x plus 2 equals 0. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा, जस्ट व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, आप बोलोगे इसे किससे कंपेयर करना, माइनस साइन है। तो माइनस साइन मतलब कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बच्चा a स्क्वायर माइनस 2ab को 3x स्क्वायर माइनस 5 से कंपेयर। मुझे एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर तो है, 3 किसका स्क्वायर होता है, किसी का स्क्वायर नहीं होता, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। कोशिश करो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हमेशा या तो किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर रखो या तो यहाँ पे 1 करो। इसको अगर मुझे 1 करना, आई एम गोइंग टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 3 बोथ द साइड्स। तो मैं करके देखता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसको डिवाइड करें 3 से इक्वल्स टू 0/3। एलसीएम लोगे 3 आएगा, यहाँ 3 गेट कैंसिल, तो बेसिकली आई एम मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन विद 1। कर सकता हूँ ये 3 से 3 कैंसिल, तो आगे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, यू विल नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस। तो आप क्या करोगे, हमेशा एक चीज याद रखो कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा व्हेन यू आर अप्लाइंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हमेशा उसे 1 के इक्वेट करो। मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या कर दो, 1 कर दो। 1 करने के लिए क्या करेंगे, जो भी इसके सामने नंबर लिखा है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अब मुझे इसको इससे कंपेयर करना है, तो a स्क्वायर की जगह क्या है, x स्क्वायर, तो a कितना आ गया x, 2ab की जगह पे क्या है, 2ab विल बी इक्वल्स टू 5/3x। देखो माइनस साइन मैंने नहीं लिया क्योंकि माइनस का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे a क्या है, x है, तो b कितना आ गया बच्चा 5/3x इनटू नीचे आएगा तो इनटू 1/2x। x कैंसिल हो गया, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आएगा 5/6 आया, 5 1 5 3 2 से 6। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई बच्चा b की। मेरे को अगर b मिल गया तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू रीराइट इट x स्क्वायर माइनस 5/3x a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Why I am separating कि मैं 0 ऐड कर रहा हूँ, this fixed 0, then आपके क्वेश्चन में लिखा है प्लस 2/3 equals to 0। I am going to rewrite it x square, x square लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है a square minus 2ab plus b square gives you a minus b का whole square minus 25/36 plus 2/3 equals 0। If you are going to solve it further, what you will get, x minus 5/6 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू या माइनस उसे भेज देते हैं, विल बी इक्वल्स टू 25/36 माइनस 2/3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 36 विल बी द एलसीएम, 25 माइनस 3 1 जा 3 3 0 12 12 2 जा 24, मतलब 1/36। टेकिंग द स्क्वायर रूट x minus 5/6 will be equals to plus minus root over 1/36, which will go to give you plus minus 1/6। तो एक बार x की वैल्यू, एक बार इसकी वैल्यू लोगे क्या प्लस 1/6, दूसरी बार वैल्यू क्या लोगे माइनस 1/6, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, first I am taking the value to be x minus 5/6 equals to 1/6 or
x माइनस 5/6 इक्वल्स टू माइनस 1/6। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 1/6 प्लस 5/6 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 1/6 प्लस माइनस 1/6 प्लस 5/6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। एलसीएम विल बी 5, एलसीएम विल बी 6, 5 plus 1 gives you 6, तो आंसर क्या जाएगा? x will be equals to 6/6, that is 1, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x will be equals to 6 minus 1 plus 5 gives you 4/6, x will be equals to 2/3। एक वैल्यू है, एक वैल्यू। This is nothing but splitting the middle term method। So these are two methods, this is the first method which I am telling you। इसके अलावा मैं splitting the middle term method और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली मेथड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसका वीडियो पहले से डाला है। ये कुछ क्वेश्चंस है, एक और क्वेश्चन है वो खुद आप सॉल्व करिएगा। दिस इज वेरी इजी, दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट आइडिया दे रहा हूं दैट हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 4x² plus 3x plus 5। In two ways you can solve this, either assume it as 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, प्लस साइन लगा और फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह इस बार है 2x का होल स्क्वायर, तो a कितना आ गया? 2x। 2ab कितना दिया है? 2ab will be equals to 3x और b क्या हो गया? 3x अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 2x into 2 gives you 4x, x कैंसिल तो 3/4। तो आप क्या करोगे? 2x² प्लस 3x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये करोगे। फिर आगे जो दिया प्लस 5 तो लगानी है, या मैंने क्या किया अभी? इस पूरे को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 4 था, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना x² को कोफिशिएंट को क्या करता हूं 1 भी करता हूं। 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। तो देखो अगर मैंने डिवाइड नहीं किया और मेरे पास जो x² का कोफिशिएंट है वो किसी नंबर का स्क्वायर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर मुझे ये नहीं करना, जो मैंने पहले बताया वही करना है, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 4 by 4 by 4 I'm going to give you x² plus 3/4x plus 5/4 equals to 0। यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा? मैं सॉल्विंग किया है, यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा? a plus b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² plus 2ab plus b²। ये होगा इन प्लेस ऑफ x² व्हाट आई हैव? x, तो a is equals to x, 2ab is equals to 3/4 times x, a की वैल्यू क्या है? x, तो b will be equals to 3/4x into 1/2x। x से x कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या आया? 3/8। b की वैल्यू क्या है? 3/8 है। अब इस 3/8 को आप क्या करोगे? इस इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन इस इक्वेशन रख लो तो x² प्लस 3/4x प्लस 3/8 का स्क्वायर माइनस 3/8 का स्क्वायर प्लस 5/4 ना डू करते। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें फर्दर, इसको निकाल दिया तो ये when you are going to solve this equation, when you are going to solve this equation and when you are going to solve this equation, you will find the same answer। मतलब x की जो वैल्यू आएगी दोनों सेम आएगी। डिफरेंस क्या था सर? हमने एक बार a की वैल्यू 4x दैट इज 2x का होल स्क्वायर लेके गए थे और एक बार हमने a² को लिया था सिर्फ x²। सब सिर्फ x² कब आया? व्हेन वी हैव डिवाइडेड 4 by 4 because 4 got the coefficient of x²। तो ये करना है, अगर नहीं करना तो ये करना। आप एक मेथड याद रखना, आप सब में कोशिश करो कि x² के आगे 1 ही। बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, आपको जो भी यहाँ पे अगर x के आगे a लिखा है तो a से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन, तो आपका इस फॉर्म में इक्वेशन। ट्राई एंड सॉल्व, फाइंड द आंसर। इफ यू गॉट एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट आस्क मी थ्रू द कमेंट। टिल देन थैंक यू।